Okay, students, now we are having the topic regulation of gene expression. Regulation of gene expression. Inside the cell, there are thousands of genes, right? Thousands of genes. This is the DNA having thousands of genes. First, it will make hnRNA, right? And then it will make mRNA. And then mRNA comes out of the nucleus, bind to ribosome in cytoplasm, and make the protein. Okay. So suppose human cell is having 30,000 genes. Suppose whether those 30,000 gene produces protein all the time. Do you think all the genes are working all the time? No. Genes are working only when required, and genes are producing only required protein. Genes are producing only required amount of protein in required place. For example, growth hormone is also a kind of protein, and growth hormone is produced in a particular phase of life, right? And the genes are active in a particular phase of life, and then the genes are switch off permanently, right? जैसे रूम में जो है एक फैन है, उसको हम स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं. इन दैट वे जीन्स को भी हम स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं. पॉसिबल है. That is the topic, regulation of gene expression. How the genes switch on, how the genes switch off. In eukaryotes, अगर मैं यूकैरियोट्स में बात करूं, रेगुलेशन ऑकर एट 4 phases. Regulation at 4 steps. In eukaryotes, regulation occur at how many steps? 4 steps. Number 1 step is transcription. Transcription level. Suppose अगर कोई जीन का प्रोटीन, suppose if any gene protein is not required, any gene protein is not required, if any gene protein is not required, that time what happens? Transcription stops. ठीक है. रेगुलेशन कितने स्टेप में हो रहा है यूकैरियोट्स में? 4 स्टेप्स में हो रहा है. देखिए, रेगुलेशन कोई जीन प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा, यूकैरियोट्स में 4 स्टेप्स में डिसाइड होगा. 4 स्टेप्स में डिसाइड होगा. ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, ठीक है, और सेकंड है स्प्लाइसिंग और प्रोसेसिंग लेवल पर, प्रोसेसिंग लेवल, and third one transport of mRNA, transport of mRNA from nucleus to cytoplasm, from nucleus to cytoplasm. ठीक है. जीन प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये डिसीजन लिया जा रहा है 4 स्टेप्स में. ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे डिसीजन लिया जाएगा. If protein is required, transcription occur. If protein is not required, transcription fails to occur. Decision splicing में भी होगा. Decision transport of mRNA from nucleus to cytoplasm में भी होगा. Translation level पे भी होगा. Translation level. ठीक है. क्लियर. 4 स्टेप्स में डिसीजन लिया जा रहा है यहां पर. 4 स्टेप्स में, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए डिसीजन लिया जा रहा है बार बार, है ना. अगर सपोज आपके मदर पूछते हैं आप क्या खाते हैं, तो आप बोलेंगे कुछ ना कुछ, आई विल ईट मैगी बोल के बोले. सो नाउ मदर विल कंफर्म इट 4 times. डू यू ईट इट?
4 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स। बनने के बाद कुछ नहीं कर सकते, खाना ही पड़ेगा वे। लेकिन बनने से पहले आपके पास चॉइस है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी बोल सकते हैं नहीं चाहिए, स्प्लाइसिंग पे भी बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बार बन जाए नहीं बोल सकते। तो प्रोटीन ऐसा जो है तैयार होंगे। रेगुलेशन प्रो यूकैरियोट में 4 स्टेप्स में, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स की बात करो, इन प्रोकैरियोट्स ओनली 2 स्टेप्स, regulation at 2 steps, at 2 steps। ऐसा रियल में होता नहीं ऐसा। 4 टाइम जो है मदर आपको पूछ रहे हैं, लेकिन मदर बहुत स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। ओके, थोड़ा सा स्ट्रक हो गया था। देखिए, प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑकर एट 2 स्टेप्स, ट्रांसक्रिप्शन स्टेप, ट्रांसलेशन स्टेप, दैट्स ऑल। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन 2 ही स्टेप में होगा, और उसमें भी ट्रांसक्रिप्शन में ही डिसीजन लिया जाएगा मैक्सिमम। ओके, क्लियर है। ट्रांसक्रिप्शन में मैक्सिमम प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट में 4 चांसेस हैं। Whether you require protein or not, that is taken decision at 4 steps. Now, in our syllabus, one example is given to understand regulation of gene expression, that is lac operon. What is lac operon? Lac means lactose, on means lac operon का मतलब क्या होगा? Set of genes working together, many genes working together, and found in E. coli. It is found in E. coli, बैक्टीरिया में होता है ये। प्रोकैरियोट्स के लिए है ये, क्या यूकैरियोट्स के लिए है? E. coli, व्हाट इज E. coli? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं एग्जाम में। लैक ओपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, और E. coli भी बोल सकते हैं। एंड दिस लैक ओपेरॉन डिस्कवर्ड बाय जाकोब एंड मोनार्ड. Jacob and Monod has given this lac operon, and lac operon is the best example for gene regulation. Best example for gene regulation, and it is also called
कैटाबॉलिक ओपेरॉन बोलते हैं इसको। लैक ओपेरॉन इज कैटाबॉलिक ओपेरॉन। कैटाबॉलिक का मतलब है इफ ए लार्ज कंपाउंड ब्रेक इनटू स्मॉलर, कैटाबॉलिक मीन समथिंग ब्रेक डाउन। लैक कैटाबॉलिक ओपेरॉन बोलेंगे बिकॉज इट इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज ब्रेक हो रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिक। लैक्टोज ब्रेक होगा इसलिए कैटाबॉलिक। लैक्टोज अगर सिंथेसाइज होता तो एनाबॉलिक बोलता मैं, ब्रेक हो रहा है इसलिए कैटाबॉलिक। And lac operon is having two situations, switch on, switch off, two different situations. वो दोनों सिचुएशन हम पढ़ना है, ठीक है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज एन एनवायरमेंटल सब्सटेंस which triggers or which induces switch on lac operon. लैक ओपेरॉन को स्विच ऑन करने के लिए क्या जरूरी है? लैक्टोज जरूरी है। एंड लैक्टोज इज नॉट पार्ट ऑफ लैक ओपेरॉन। लैक्टोज is coming from outside, just like food is coming from outside. Your food is coming from outside, not synthesized in your body. So coming from outside इसलिए मैं environmental बोल रहा हूं, सराउंडिंग से आ रहा है। lactose is an inducer because it triggers switch on, because it triggers switch on in lac operon. लैक ओपेरॉन में स्विच ऑन करने के लिए लैक्टोज बहुत जरूरी है। ये ट्रिगर करता है, स्विच ऑन कराता है, देयरफॉर लैक्टोज को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूसर बोलेंगे। केमिकली लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड मेड ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वन गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। लैक्टोज को मैं बीटा गैलेक्टोसाइड्स भी बोल सकता हूं। लैक्टोज आल्सो कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइड्स। जानते होंगे आप, लैक्टोज में बीटा लिंकेजेस होते हैं इसलिए उसको बीटा गैलेक्टोसाइड्स बोलते हैं। लैक्टोज आल्सो कॉल्ड, lactose is a disaccharide also called beta galactosides. I am saying sides, not sideays. Beta galactosides, which is made of glucose and गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से बना होता है बीटा गैलेक्टोसाइड। बीटा गैलेक्टोसाइड किससे बना हुआ है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना हुआ। एंड हु ब्रेक डाउन लैक्टोज? लैक्टोज हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज मतलब ब्रोकन बाय बीटा galactosidase. Yes, beta galactosidase. Just like your digestive system, if you have food, if you take food, then your digestive system secrete enzymes to break down the food. In that same way, Escherichia coli, E. coli bacteria make the enzyme beta galactosidase only if lactose is present. Lactose present है तो beta galactosidase है, लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करते हैं? नहीं चाहिए बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ओके, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट ओनली दैट टाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेस इज सिंथेसाइज्ड। लेट्स सी द सिचुएशन। ई कोलाई is growing in a medium containing lactose. Suppose lactose absent है, समझ लो। ई कोलाई एक ऐसे मीडियम में मैं ग्रो कर रहा हूं जहां पे लैक्टोज एब्सेंट है।
In that case, beta galactoside is needed or not needed? Not needed. तो यहां पे एक डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, देखिए. First, promoter gene is present, then I gene is present, then promoter gene is present, then operator gene, Z gene, Y gene, A gene. This is the structure, this is the complex or cluster of genes. Cluster of gene is called operon. Operon किसको बोलते हैं? Set of genes. Lac operon किसको बोलते हैं? Set of genes which break down lactose. Set of genes which metabolize lactose is called lac operon. देखो यहां पर क्या होने वाला है. पहले मैं आपको स्विच ऑफ सिखाऊंगा. स्विच ऑफ कैसे करना है. स्विच ऑफ. इंड्यूसर प्रेजेंट और एब्सेंट? इंड्यूसर एब्सेंट. मैं इंड्यूसर किसको बोलूंगा यहां पर? लैक्टोज को बोलने वाला हूं मैं इंड्यूसर. तो यहां पर पी जीन, यहां पे पी दो बार है. पी जीन, पी फॉर प्रमोटर, and everyone should know pre-gene or promoter gene is RNA polymerase binding site. ये तो सबको मालूम है. प्रमोटर जीन इज आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट. यहां पे मैं ड्रॉ करूं या ना करूं, प्रमोटर जीन है पे आरएनए पॉलीमरेज कंपलसरी है. इमेजिन कर लेना, प्रमोटर जीन पर आरएनए पॉलीमरेज है. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज? RNA polymerase make mRNA. It make mRNA from the I gene. I gene mRNA बनाना है और mRNA से बनेगा एक प्रोटीन. What is this protein? रिप्रेसर प्रोटीन. सेंट्रल डॉगमा तो सबको मालूम है. डीएनए है. आई जीन मतलब डीएनए. जीन मतलब डीएनए का सेगमेंट होता है. डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना, रिप्रेसर प्रोटीन बना. पी जीन पे क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है. समझे? यहां पे मैं बोला ना, हमेशा समझ लो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज है कंपलसरी. तो रिप्रेसर प्रोटीन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इट विल गो एंड बाइंड टू ऑपरेटर. It will go and bind to operator. If it bind to operator, यहां पे कौन है? आरएनए पॉलीमरेज है. चुप लिख देंगे ना इधर, आरएनए पी बोल के लिख देंगे. आरएनए पॉलीमरेज है. एंड द आरएनए पॉलीमरेज वे इज ब्लॉक्ड बाय रिप्रेसर प्रोटीन. एक्चुअली आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ repressor protein. Now RNA polymerase will not move forward to Z gene, Y gene, A gene. So RNA polymerase cannot perform transcription from Z, Y, A gene. Actually ये RNA polymerase का वर्क बताओ. RNA polymerase का काम था mRNA तैयार करना, एक ऐसा mRNA तैयार करना, लेकिन तैयार नहीं होने वाला है because the way of RNA polymerase blocked by repressor protein. No transcription from structural genes Z, Y, A. Hence no enzyme. जब mRNA नहीं है तो एंजाइम कहां से बनेंगे? दिस इज द केस. ठीक है, क्या है बोलो वर्ड्स में अपने. स्विच ऑफ को एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में. स्विच ऑफ मीन्स व्हेन स्ट्रक्चरल जीन Z, Y, A they are not making any enzyme. Everything, all information are in this diagram. ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सब डायग्राम देके समझना. Switch off means Z, Y, A gene, structural gene, they are not making any enzyme because inducer is absent. In case inducer absent, repressor protein bind with the operator,
block the RNA polymerase site. As a result, no transcription. So therefore, I can say lac-operon is the best example of transcriptional control. ट्रांसक्रिप्शनल, लैक्टोज नहीं था तो एंजाइम भी नहीं बना। ये डिसीजन कब लिया गया? एंजाइम नहीं बनाना है, डिसीजन कब लिया गया? ट्रांसक्रिप्शन स्टेप में या ट्रांसलेशन स्टेप में? ट्रांसक्रिप्शन में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। लैकोपेरॉन is best example for transcriptional control. Transcriptional control. ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल बोलेंगे ना। इन स्विच ऑफ, लिखिए, इन स्विच ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर। लिखिए अब वर्ड्स में, इन स्विच ऑफ repressor protein binds to operator. Repressor protein binds to operator. Repressor protein binds to operator. Hence the RNA polymerase. Hence the RNA polymerase get blocked. Get blocked. इसलिए RNA polymerase ब्लॉक हो चुका है। As this enzyme is not moving forward, as this enzyme, RNA polymerase की बात हो रही है, as this enzyme is not moving forward, लिख रहे हैं, as this enzyme is not moving forward, no transcription and translation, no transcription and no translation। तो ये था स्विच ऑफ था, ये स्विच ऑफ, एंजाइम नहीं बन रहे हैं यहां पर बिकॉज इंड्यूसर एब्सेंट है। ठीक है, मतलब क्या है? आई मतलब यहां पे कहानी है, आई मतलब मैं हूं, आई माई सेल्फ, आई, और ये मेरे पीछे भी पढ़ाई है और आगे भी पढ़ाई है। ठीक है, आई मतलब मैं हूं, मेरे पीछे भी पढ़ाई है, मेरे आगे भी पढ़ाई है। ठीक है, और मेरा एक दोस्त है रिप्रेसर बोल के, और जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं ना, वो आके मेरी पढ़ाई बंद कर देता। तो मेरा फिजिक्स भी गया, केमिस्ट्री भी गया, बायो भी गया। ठीक है, कैसा तो करना है ऐसे दोस्तों को रोकना, रिप्रेसर। ठीक है, अब कुछ करना पड़ेगा है ना इसका, रिप्रेसर का। चलो देखेंगे आप। स्विच क्या पढ़ना है अब? स्विच ऑन पढ़ना है। स्विच ऑन। अब स्विच ऑन कैसे पढ़ेंगे देखिए, फिर एक बार प्रमोटर जीन, फिर रेगुलेटर जीन, आई बोल तो रेगुलेटर जीन, फिर एक प्रमोटर जीन, फिर एक ऑपरेटर जीन, फिर जेड जीन, फिर वाई जीन, फिर ए जीन। इंड्यूसर क्या है इस बार? हु इज इंड्यूसर? हु इज इंड्यूसर? लैक्टोज इंड्यूसर प्रेजेंट है। अब मेरा प्रॉब्लम जो है, मैं इंड्यूसर को बताया, समझे मेरा प्रॉब्लम क्या है? जब भी मैं पढ़ने बैठ रहा हूं तो रिप्रेसर आके ब्लॉक कर रहा है मेरी स्टडी को। तो मैं बताया ऐसा प्रॉब्लम हो रहा, कैसा करना, मार्क्स कम आ रहे मेरे, कैसे करना बोले। तो इंड्यूसर बोला ठीक है, मैं संभाल लेता हूँ अब रिप्रेसर को मैं संभाल लेता हूँ, तुम पढ़ो बोले। तो ठीक है बोला मैं। आई जीन से क्या बना? mRNA बन गया। जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठा, रिप्रेसर आ गया। देखो
अब क्या करना, रिप्रेसर प्रोटीन। अब जो है मैं बोला था ना इंड्यूसर को, इंड्यूसर भी आ गया है, इंड्यूसर भी रेडी है। इंड्यूसर पूछता रिप्रेसर प्रोटीन को कहां जा रहे, जा रहा हूं उसके पास, देखो डेली पढ़ते पढ़ता ब्लॉक करना है जरा स्टडी बोल के। तो इंड्यूसर बोलता क्यों जा रहे हो उसके पास, बहुत बोर है आदमी, पर्सन कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ते से रहता, कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए यहां पे क्या हो रहा, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। इंड्यूसर समझा लेता है इसको, रिप्रेसर को, मत जाओ उसके पास, क्या करते, खेलता ना करता चुप। तो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन जाता। तो यहां पे कौन है, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है। नाउ दिस आरएनए पॉलीमरेज इज वेरी फ्री, कंप्लीटली फ्री है। अब रिप्रेसर प्रोटीन तो है नहीं सामने, आराम से आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा ऑपरेटर पे, जेड जीन, वाई जीन, ए जीन से एमआरएनए तैयार करेगा, एक एमआरएनए तैयार करेगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, बिकॉज दिस एमआरएनए इज हैविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम three different gene, Z, Y, A gene, and this mRNA is synthesized with the help of RNA polymerase, and all this became possible because of inducer. So say thanks to inducer. Now Z gene से जो mRNA बना है, उस mRNA से एक एंजाइम बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। वाई जीन से क्या बनेगा, लैक्टोस परमीएज, लैक्टोस परमीएज। और ए जीन से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेस। अब ये डायग्राम को मैं स्विच ऑन बोलूं या स्विच ऑफ बोलूं, सिंपल, इट शुड बी कॉल्ड स्विच ऑन बिकॉज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, therefore it is switch on, it is not switch off, it is switch on। यही है लैकोपेरॉन, ठीक है, लिखो first point here below the diagram, lactoperon contains one regulatory gene, ब्रैकेट में आई जीन, स्मॉल लेटर आई जीन, and three structural genes ZYA। लैकोपेरॉन में कितने जीन्स हैं बोलो, वन रेगुलेटरी जीन आई जीन एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन ZYA जीन एंड टू प्रमोटर और एक ऑपरेटर तो रहेगा, प्रमोटर ऑपरेटर रहेगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि एवरी जीन इज एसोसिएटेड विद प्रमोटर बोल के पढ़े सो हम, एवरी जीन इज एसोसिएटेड विद प्रमोटर, ओके। और यहां पर याद रखेंगे लैक्टोज और अल्लोलैक्टोज, नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टोज और अल्लोलैक्टोज act as inducer, अब बोलेंगे अल्लोलैक्टोज क्या है, अल्लोलैक्टोज इज आइसोमर ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज और अल्लोलैक्टोज act as inducer, lactoperon switch on only in presence of lactose, okay, lactoperon switch on only in presence of lactose, therefore lactoperon is called inducible operon, therefore lactoperon is called inducible operon। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आ गया
Normally, lac-operon remains switch off and it switch on only in presence of lactose. Statement is right. Normally switch off ही रहता lactose. ये लैकोपेरॉन जो है नॉर्मली स्विच ऑफ रहता. कब तक स्विच ऑफ रहता? तब तक लैक्टोज नहीं आता है ना. कुछ स्टूडेंट रहते हैं पढ़ते नहीं, बोले तक पढ़ते नहीं है ना, कुछ तो बोलना उनको, पेरेंट्स बोलना, गुस्सा करना, तब पढ़ते हैं. तो ऐसा है केस ये भी लैकोपेरॉन का. नॉर्मली स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज. दिस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ ओपेरॉन? इंड्यूसेबल ओपेरॉन बोल रहे हैं इसको, इसलिए बोले इंड्यूसेबल. कुछ लोग ऐसा भी रहते हैं बोलने के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं ना. कोई बोले तो पढ़ना, ऐसे भी होते हैं क्या? होते होंगे एक दो केस, बोलने पर पढ़ना छोड़ दें. रिप्रेसेबल ओपेरॉन बोल के भी रहता हूं, अपोजिट ऑफ इंड्यूसेबल. मतलब एटलीस्ट बोले तो पढ़े, तो इंड्यूसेबल ओपेरॉन. बोलने पर छोड़ दिए पढ़ना तो क्या बोलेंगे? रिप्रेसेबल ओपेरॉन. लैक ओपेरॉन क्या है? इंड्यूसेबल ओपेरॉन है. ओके. Now, next point, very, very important, लिखिए. I gene is called constitutive gene. I gene is called constitutive gene. Constitutive gene. Constitutive genes or housekeeping genes. Or housekeeping genes. I gene को मैं क्या बोल रहा हूं? Constitutive gene or housekeeping genes which remain switch on, which remain switch on, never switch off, never switch off. कभी भी स्विच ऑफ ही नहीं होता. आई जीन का केस अलग है. आई जीन को वर्क अलॉटेड है. आई जीन बनाना चाहिए एमआरएनए, एमआरएनए बनाना चाहिए रिप्रेसर प्रोटीन. चाहे स्विच ऑन का केस हो, स्विच ऑफ का केस हो, हमेशा काम तो अलॉटेड है आई जीन को. इसलिए आई जीन को हम बोल रहे हैं कंस्टिटेटिव जीन. हमेशा काम करने वाले जीन्स हैं ये. हाउस कीपिंग जीन्स हैं. दे हैव ऑल द टाइम वर्क, दे नेवर स्विच ऑफ. तो ये होते हैं आई जीन. आई स्टैंड्स फॉर, ये भी याद रखना, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर, नॉट इंड्यूसर. आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर. एक्चुअली आई का काम क्या था? आई का काम था ऑपरेटर पे जाके स्विच ऑफ करा देना. इनहिबिटर का काम कर रहा था एक्चुअली. आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर. बुक में लिखा आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर नॉट इंड्यूसर बोल के लिखा है. नॉट इंड्यूसर क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं, इंड्यूसर बोलते हैं उसको. आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर. ओके, चलिए. प्रमोटर जीन का वर्क समझना है. आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट. आई जीन का काम रिप्रेसर प्रोटीन. ऑपरेटर जीन क्या कर रहा है? ऑपरेटर जीन बाइंड्स विथ रिप्रेसर प्रोटीन इन केस ऑफ स्विच ऑफ. इन केस ऑफ स्विच ऑन दे आर फ्री, दे आर फ्री, दे आर नॉट विथ रिप्रेसर प्रोटीन. ठीक है, चलो नेक्स्ट. और एक बात, द मिनिमम लेवल ऑफ expression is always present in lactoperon. Even in switch off case, minimum level of lactose permease is needed in E. coli all the time. एक बात समझ लो, स्विच ऑफ है समझ लो, तब भी ई कोलाई के पास क्या रहना चाहिए? परमिएज एंजाइम. थोड़ा तो थोड़ा परमिएज एंजाइम चाहिए. ए मिनिमम लेवल ऑफ एक्सप्रेशन इन लैकोपेरॉन इज ऑलवेज नीडेड. लिखिए, a minimum level of expression, a minimum level of expression is always required. A minimum level of expression is always required in lactoperon. A minimum level of expression always required in lactoperon, even in switch off. Even in switch off.
मतलब सपोज संडे हॉलीडे है समझो, तो संडे हॉलीडे है मतलब पूरा हॉलीडे नहीं है वो, उसमें भी मिनिमम एक्सप्रेशन चाहिए, उसमें भी पढ़ना चाहिए, स्विच ऑफ नहीं होना है कभी भी। लैक ऑफ रन पूरी तरीके से स्विच ऑफ तो नहीं होता, आइजीन का काम तो चलते ही रहता, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज रहता है हमेशा। दैट मींस ऑलवेज ए मिनिमम लेवल ऑफ लैक ऑपेरॉन एक्सप्रेशन हैज टू बी नीडेड इवन इन स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे जीन स्विच ऑफ है, देख लो आप स्विच ऑफ का डायग्राम बना हुआ है आपके नोटबुक में अभी, उसमें भी कुछ ना कुछ काम चल रहा था। हाँ नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, नेक्स्ट पॉइंट, glucose and galactose cannot act as inducer. Glucose and galactose cannot act as inducer. ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर का काम तो नहीं कर सकते, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैनॉट एक्ट एज इंड्यूसर लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, ओके, नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑल दिस थ्री एंजाइम्स, थ्री एंजाइम का वर्क बोलिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक डाउन लैक्टोज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक डाउन लैक्टोज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक डाउन बीटा गैलेक्टोसाइड, किसको बोल रहा हूं मैं, बीटा गैलेक्टोसाइड, लैक्टोज को बोल रहा हूं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक डाउन लैक्टोज। परमिएज का काम बोलिए, नाम सही है, परमिएज अलाउ द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू ई कोलाई, परमिएज अलाउ द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू ई कोलाई। मतलब एक ई कोलाई है समझ लो, ये ई कोलाई है, तो लैक्टोज को पहले अंदर तो लेकर आओ, बाद में ब्रेक करेंगे, पहले लेकर तो लाओ, अंदर लैक्टोज लेकर आना है, तो लेकर कौन आएगा, परमिएज। परमिएज का काम क्या है, इट अलाउ द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू ई कोलाई, लिख दिए। नेक्स्ट, ट्रांसएसिटाइलेज का काम बोलिए, ट्रांसएसिटाइलेज ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप टू बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ट्रांसएसिटाइलेज ट्रांसफर acetyl group to beta galactosidase, acetyl group to beta galactosidase for its activation, for its activation। ओके, ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं आपके पास, लैकोपेरॉन के सारे पॉइंट्स। अब एक क्वेश्चन है बुक में, हाउ लॉन्ग दिस लैकोपेरॉन रिमेन स्विच ऑन इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट, हाउ लॉन्ग it remains switch on, lactoperon remains switch on till E. coli get its glucose requirement, till E. coli get its glucose requirement। समझे, E. coli कितना लैक्टोज लेगा, इतना लैक्टोज लेगा कि उसको जितना ग्लूकोज चाहिए पूरा मिल जाना चाहिए उसको, ठीक है, लिखिए, lactoperon remains switch on, lactoperon remains switch on till E. coli, till E. coli, till E. coli gets, till E. coli gets all its glucose requirement, till E. coli gets all its glucose requirement। जब तक के ग्लूकोज उसको जितना चाहिए उतना मिलना जाए, उतना तब तक जो है स्विच ऑन ही रहेगा, है ना। सपोज फेवरेट आपके ना, फेवरेट डिश है आपके सामने, आप कितना खाएंगे, कितना खाएंगे, जितना खा सकते हैं उतना खाएंगे, टिल वी गेट्स ऑल आवर ग्लूकोज रिक्वायरमेंट, उतना। यही है ई कोलाई का भी सेम ऐसे ही करेगा। और एक बात यहां पर एनसीईआरटी में लिखी हुई है लाइन, ज्यादा कंफ्यूजन भी है, बच्चे ज्यादा डाउट पूछते हैं, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर प्रोटीन इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन, regulation of lactoperon by
रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर प्रोटीन, बाय रिप्रेसर प्रोटीन इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन. Regulation of lactoferrin by repressor protein is called negative regulation. रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन, देखो क्या हो रहा था, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हो रहा था, देन देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन. दिस इज कॉल्ड विच रेगुलेशन? नेगेटिव रेगुलेशन. और यही केस अगर लैक्टोज प्रेजेंट रहा तो क्या हो रहा है? लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तब क्या हो रहा है? रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो रहा है वो. नाउ ऑपरेटर जीन इज फ्री. ठीक है, Z gene is making, Y gene is making, A gene is making enzymes. This is called positive regulation. ये हो गया पॉजिटिव रेगुलेशन. लैकोपेरॉन में दोनों रेगुलेशन है, पॉजिटिव रेगुलेशन भी है, नेगेटिव रेगुलेशन भी है, लेकिन ज्यादातर क्या है? नेगेटिव रेगुलेशन बहुत ज्यादा है. पॉजिटिव रेगुलेशन तो कब तो भी एक बार होता, लैक्टोज तो कब तो भी एक बार प्रेजेंट रहता. नहीं समझने आया? लेट्स टेक वन एग्जांपल. सपोज देयर आर टू किड्स, दो बच्चे हैं छोटे जो है, मदर जो है उनके, वो मदर क्या करते हैं, मदर डोंट अलाउ द किड्स टू प्ले आउटसाइड आउटसाइड द हाउस, क्योंकि मदर को लगता है कि बाहर बच्चे जाएंगे तो खराब हो जाएंगे. ठीक है, तो वो क्या है? नेगेटिव रेगुलेशन है. मदर क्या कर रहे हैं? मदर इज नॉट अलाउिंग किड्स टू गो आउटसाइड, क्योंकि बच्चे खराब हो सकते हैं बाहर जाने पर. तो ये है नेगेटिव रेगुलेशन. ठीक है, उसके बाद फादर आते हैं लैक्टोस, आके बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन को, नहीं नहीं बाहर जाना जरूरी है, बाहर जाएंगे तो मालूम होगा बाहर क्या चल रहा है ना, मालूम होना चाहिए एनवायरनमेंट कैसा है. तो वो कौन सा रेगुलेशन है? पॉजिटिव रेगुलेशन. बट बोथ आर करेक्ट, नेगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन. बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ फादर तो हमेशा नहीं रहते ना, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव रेगुलेशन है, रेयरली पॉजिटिव रेगुलेशन ना. आप क्वेश्चन भी ऐसे पूछेगा ना, लैकोपेरॉन शो विच रेगुलेशन? नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव रेगुलेशन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव रेगुलेशन. तो लिखो आप, क्या लिखे हम बोलो? रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन विद द हेल्प ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन. ऐसा लिखेंगे फिर, रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय मदर, mother is like repressor protein only, this is called negative regulation. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉजिटिव रेगुलेशन कैसा लिखेंगे? ठीक है, पॉजिटिव रेगुलेशन, लैकोपेरॉन आल्सो शोज, लैकोपेरॉन समटाइम्स आल्सो शोज पॉजिटिव रेगुलेशन, आल्सो शोज पॉजिटिव रेगुलेशन, also shows positive regulation because of lactose, because of lactose. ठीक है, अब यहां पे कुछ लाइंस हैं एनसीईआरटी के जो बच्चे ज्यादातर डाउट पूछते हैं ये लैकोपेरॉन में. मैं वो लाइंस आपको बता देता हूं. सबसे पहले पेज नंबर 116 पे, 116 फर्स्ट पैराग्राफ, एवरी टाइम यू शुड हैव एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी के बगैर नहीं रहना. फर्स्ट पैराग्राफ के है ना लास्ट 3 लाइंस क्या हैं? लास्ट 3 लाइंस, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट 3 लाइंस, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म. मतलब एक एम्ब्रियो से एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है, एक जाइगोट से मरूला, मरूला से ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, एक पूरा एम्ब्रियो, एक फीटस, और एक पूरा एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है. दिस इज ऑल ड्यू टू द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स. एम्ब्रियो से एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इट इन्वॉल्व रेगुलेशन ऑफ जीन्स.
है ना। बोन्स कितना ग्रो होना है, बोन्स कितने हाइट पे ग्रो होने वाला, कितने लेंथ रहना चाहिए, इंसुलिन कब प्रोड्यूस होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन कब प्रोड्यूस होना चाहिए, मेलाटोनिन हार्मोन कब प्रोड्यूस होना चाहिए, नींद कब आना है, एपेटाइट हंगर कब होना चाहिए, थर्स्ट कब होना चाहिए। दिस इज ऑल एवरीथिंग रेगुलेटेड बाय जीन्स, सेट ऑफ जीन्स, सेवरल जीन्स। समझ में आ गई लाइन ये? मतलब बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ जीन्स ओनली, इन सिंपल, एम्ब्रियो टू अडल्ट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ, सेम पेज, सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड लाइन, इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, याद है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रमोटर, टर्मिनेटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन। In a transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins, which affects its ability to recognize a start site. These regulatory proteins can act both positively and negatively. RNA polymerase की जो एक्टिविटी है, RNA polymerase एक्टिविटी, इसकी जो एक्टिविटी है, कंट्रोल्ड बाई एसेसरी प्रोटीन। और वो एसेसरी प्रोटीन कौन है, भूल गए आप? एसेसरी प्रोटीन कौन है बोलो? एक तो सिग्मा फैक्टर है और एक तो रो फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर क्या है? एक्टिवेटर का रोल करता है। रो फैक्टर रिप्रेसर का रोल करता है और रोक देता है ना आरएनए पॉलीमरेज को, डोंट ट्रांसक्राइब। ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज के दो टाइप के फ्रेंड्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज के दो फ्रेंड्स हैं, एक तो एक्टिवेटर का काम कर रहा है, एक्टिवेटर का काम कर रहा है, तो एक्टिवेटर ही के साथ ही दोस्ती बनाई है हमेशा। और रिप्रेसर का भी दोस्त है, एक रिप्रेसर भी है एक। RNA polymerase may be acting as activator role or may be playing as repressor role depending on accessory protein. Accessory protein का मतलब है these are the protein associated with RNA polymerase, may be playing the role of activator or may be playing the role of repressor. हो गए दोनों लाइन, अंडरलाइन करके रखना बुक में। और नेक्स्ट यही पैराग्राफ के लास्ट दो लाइन है, लास्ट दो लाइन है सेकंड पैराग्राफ के लास्ट दो लाइन। फॉर एग्जांपल, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ओपेरॉन। मतलब बहुत सारे ओपेरॉन हैं, एक्चुअली यहां पर बोलना है मेरे को। लैक ओपेरॉन का फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट टू लाइंस, लास्ट टू लाइंस। To name few such examples of operon: lac operon, TRP operon, tryptophan operon, arabinose operon, arabinose, histidine operon, valine operon, valine operon। मतलब क्या है? लैक ओपेरॉन की तरह बहुत सारे ओपेरॉन हैं। हिस ओपेरॉन भी है, टीआरपी ओपेरॉन भी है, अराबिनोज एपेरॉन भी है, ठीक है, लैक ओपेरॉन भी है। एंड ऑल द फंक्शन ऑफ दिस ओपेरॉन इज टू मेटाबोलाइज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। कभी लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना है तो लैक ओपेरॉन, अराबिनोज को मेटाबोलाइज करना है अराबिनोज ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन को मेटाबोलाइज करना है तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। बहुत सारे टाइप के ओपेरॉन रहते हैं बोल के बता रहा हूं, जस्ट स्टेटमेंट। ओके, फिर आगे क्या है? ओके, पेज नंबर 117 में, 117 में फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट थ्री लाइंस। रिमेंबर, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cells। मतलब स्विच ऑफ के केस में भी कुछ ना कुछ वर्क चलते रहेगा लैक ओपेरॉन में। A minor level of expression of lac operon has to be present all the time। ओके, ये एक हो गया है। और उसके बाद लास्ट थ्री लाइन जो है वो भी ज्यादा डाउट पूछते हैं बच्चे। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज
नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल लेके, लैक ओपेरॉन इज अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल, कभी कभी पॉजिटिव रेगुलेशन भी, बट नॉर्मली नेगेटिव रेगुलेशन ही है। और कुछ बच्चे मेरे को आज ज्यादा डाउट पूछे, पेज नंबर 114 का जो डायग्राम है, कोडॉन और एंटी कोडॉन का डायग्राम है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर आप तो ऊबल हाइपोथेसिस पढ़ाए, कल बताया आप मिसमैच बेस पेयरिंग होता बोल के बोले, यहां तो मिसमैच नहीं है बोल रहे हैं। तो मिसमैच हर जगह होना जरूरी नहीं है, मिसमैच में ऑकर 61 codons are read by how many tRNA? 20 tRNA। अब यहां पे नहीं बताया होगा, स्ट्रिक्टली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चल रही है, बट ऊबल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, देखिए लैक ओपेरॉन तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एग्जाम के लिए लैक ओपेरॉन तक आपको रेडी रहना है। संडे एग्जाम आप अपने नियर बाई सेंटर्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।